Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is next video in the best of CAT LRDA practice series. So today we have a new category of problems, right? आज हम थोड़ा सा नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन, राइट? थोड़ा बहुत पेंसी का एस्पेक्ट लगने वाला है आपका, ठीक है? एंड दैट विल सिंपली बी रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट? सो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ पीएनसी, राइट? सो प्रॉब्लम्स के साथ उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं, जो बेसिक एस्पेक्ट आपका पीएनसी का यूज होने वाला है, ठीक है? कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं. Let's kick off with this particular video, and as always चाणक्य बैच है. If you want to enroll for this batch, links हमारे डिस्क्रिप्शन में है and all the numbers are there on the first slide of this particular video itself. ठीक है, चलो let's begin with this set, and as always let's proceed with the standard idea. First pause this video, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now चलो start करते हैं. Let's first read this. This looks very lengthy, right? But it looks very lengthy only because of the restrictions given, right? Actually में solve करते time it is not so difficult. So exam के सिनेरियो में अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी PNC आती है, बेसिक कॉम्बिनेशंस भी करने आते हैं, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट में भी वही सेम कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने का फंडा होता है जो इसमें एग्जैक्टली यूज होने वाला है. तो अगर वो थोड़ा बहुत भी आता है तो मे बी लाइक समवन कैन इजिली एक्चुअली सॉल्व maybe 2 problems or maybe 3 problems in less than 6 to 7 minutes, right? That is definitely possible if this clicks to you. Now let's start first reading this, and जो भी underlying आपका जो logic होगा या जो भी principle होगा वो हम questions के accordingly discuss कर लेंगे, ठीक है? Now let's start reading this. So what does this say? A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 distinct cities, right? So there are 10 cities involved. That is a good number, which they plan to connect through their network to start with. The flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. These are all, like, say, it's like supporting statements. They don't have any validity. They don't have any usage in this particular set, right? सिर्फ कहानी है. The flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. To start operations, the company has to decide on a daily schedule. The underlying principle, now that is very important. What is that underlying principle? The underlying principle that they are working on is the following. So अब जो हम यहाँ पे रीड करेंगे, दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, जो मेन आपका फंडा है जिसके अराउंड वो एयरलाइन ऑपरेट करने वाला है, वही हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट है. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. Any person staying in any of these cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. Now you have to understand this very clearly because there is a slight confusion. मैक्सिमम लोग एक उसी एस्पेक्ट में गलती कर सकते हैं. देखो, आज जब ये 2017 में आया था तब भी मैक्सिमम लोगों ने सेम मिस्टेक एक्चुअली में करी थी, राइट? सो दिस वाज अ प्रॉब्लम फ्रॉम कैट 2017 एंड आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ पीपल मेड द सेम लाइक रूकी मिस्टेक इन दिस. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. इस स्टेटमेंट का मीनिंग एक्चुअली में क्या है? तो सपोज देयर आर 2 cities A and B, right? So any person staying in any of these 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. So सपोज करते हैं, पहले इसको ब्रेक करके, सपोज 2 cities आर कनेक्टेड A एंड B. अभी पॉइंट बस इतना सा है कि A और B के बीच में कितनी फ्लाइट्स चलनी चाहिए. ये चीज अगर समझ जाओगे तो सारे प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएंगे. तो किसी भी 2 cities A और B के बीच में कितनी फ्लाइट चलनी चाहिए? उतनी कि इन दोनों में से कोई भी पर्सन कहीं से भी स्टार्ट करे तो मॉर्निंग में भी उसको एक फ्लाइट मिल जाए और उसको इवनिंग में भी एक फ्लाइट मिल जाए. सो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोच के देखो तो बहुत सिंपल सा आपको नंबर 4 समझ में आएगा. ये 4 फ्लाइट्स कहां से आ रहे हैं? बिकॉज ए और बी, जब भी हम 2 पेयर ऑफ सिटीज की बात करते हैं, इट कुड बी एनी पेयर, राइट? वो तो हम एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स से देयर आर 2 पेयर्स ए एंड बी. सपोज ये ए एंड बी एक पेयर है सिटीज का, तो इसमें से चॉइसेस आपके पास क्या होनी चाहिए? सपोज आई एम एट ए, तो मेरे पास क्या चॉइस होनी चाहिए? मैं ए से बी जा सकता हूं मॉर्निंग में. सो एक मॉर्निंग की फ्लाइट होनी चाहिए फ्रॉम सिटी ए टू बी, राइट? सिमिलरली उसी पर्सन को बी से ए वापस भी आना पड़ेगा इन द इवनिंग. सो एक इवनिंग फ्लाइट होनी चाहिए फ्रॉम बी टू ए इन द इवनिंग. सो 2 फ्लाइट तुम्हें मिल गई अगर पर्सन ए से स्टार्ट किया है, राइट? इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग एट ए, तो उसके पास एक मॉर्निंग फ्लाइट का ऑप्शन होना चाहिए टू बी एंड एक इवनिंग फ्लाइट का ऑप्शन होना चाहिए टू ए बैक अगेन. सिमिलरली, नाउ देयर लाइज द कैच, सिमिलरली ए और बी जो 2 पेयर ऑफ सिटीज हैं उसमें स्टार्टिंग हो सकता है जो पर्सन करे वो बी सिटी से करे ना,
तो उसको भी तो ऑप्शन देना पड़ेगा. अ पर्सन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सिटी एंड ट्रैवल टू एनी सिटी. सो ए और बी तो बस आपने एक पेयर बोला, पेयर ऑफ सिटीज. अब पेयर ऑफ सिटी में कितनी फ्लाइट चलेंगी, तो उसमें ए से भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, बी पे जा सकता है और शाम को वापस. सिमिलरली पर्सन मेरा बी से भी स्टार्ट कर सकता है. तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना कि बी से ए को जाने वाली फ्लाइट इन द मॉर्निंग, वो तो अभी तक आपने नहीं काउंट करी है ना. ये वाली फ्लाइट तो आपकी ए से बी जा रही है इन द मॉर्निंग, और ये वाली फ्लाइट बी से ए आ रही है इन द इवनिंग. सिमिलरली यू शुड ऑल्सो हैव 2 more फ्लाइट्स, और वो 2 more फ्लाइट्स कौन सी है, बी से ए जाए इन द मॉर्निंग एंड ए से वापस आए बी इन द इवनिंग. सो दैट गिव्स अ वेरी गुड नंबर फॉर अस, एंड सारे प्रॉब्लम्स में वो एक्चुअली में यूज होने वाला है. बिटवीन एनी 2 पेयर ऑफ सिटीज, ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट. ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जब भी कोई भी 2 पेयर ऑफ सिटीज कनेक्ट होंगी तो उनके बीच में बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन देयर शुड ऑपरेट एग्जैक्टली 4 फ्लाइट्स, राइट. सो कोई भी पर्सन कहीं से भी स्टार्ट करके दिन में जाके और शाम में वापस आ सकता है, राइट. सो ये हमारा इस पर्टिकुलर सेट का एक्चुअली में बेसिस है. अब इसी आइडिया को यूज करते हैं, जब भी पेयर आएगा तो हमेशा 4 नंबर आना कंपलसरी है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम में एक्चुअली वो जो पेयर्स है ना वो बस आपके बदलेंगे. जैसे कि देखो, और उसको हम एक्चुअली में पीएनसी से सॉल्व कर सकते हैं. देखो क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज टू बी सैटिस्फाइड इन सच अ वे दैट द जर्नी बिटवीन एनी 2 cities कैन बी परफॉर्म यूजिंग ओनली डायरेक्ट फ्लाइट्स. डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब एवरी पॉसिबल पेयर हैज टू बी कनेक्टेड, राइट. टोटल कितने सिटीज थे आपके पास, 10 सिटीज थे, वो नंबर याद रखना. इफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज टू बी सैटिस्फाइड इन सच अ वे दैट द जर्नी बिटवीन एनी 2 cities कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ओनली डायरेक्ट फ्लाइट्स, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स नहीं होना चाहिए. इसका बस ये मतलब है, जैसे अगर मुझे ए से सी जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ए से बी गया और मैं बी से सी चला गया. वाया वाला कोई फंडा नहीं है. हर पॉसिबल पेयर ऑफ सिटीज आपको क्या करनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी. एवरी पॉसिबल पेयर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है. देन द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू बी शेड्यूल्ड इज, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स करना है, बट कंडीशन तो ये है ना कि एवरी पॉसिबल पेयर हैज टू बी कनेक्टेड. सो देयर कम्स द पार्ट जहां पे हम कॉम्बिनेशन पहले फिगर आउट करेंगे. और कॉम्बिनेशन क्या, कि टोटल अगर हमारे पास 10 सिटीज हैं तो उन 10 सिटीज में कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं आपके सिटीज के, बिकॉज इन एवरी पेयर देयर हैज टू बी अ टोटल ऑफ 4 फ्लाइट्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन. सो अब हमारा एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, 4 तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बिकॉज हर पेयर में 4 आएगा, बट नंबर ऑफ पेयर्स भी तो फिगर आउट करने पड़ेंगे. सो नंबर ऑफ पेयर्स फिगर आउट करने के लिए यू कैन एक्चुअली गो एंड लाइक लर्न अ बिट ऑफ पीएनसी. तो बस यहां पे हमें जरूरत क्या है कि अगर हमारे पास 10 चीजें हैं तो उसमें से हम 2-2 के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2-2 के कितने पेयर बना सकते हैं, यही तो है. तो उसके लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है पीएनसी में, कि अगर तुम्हारे पास n डिस्टिंक्ट चीजें हैं, इफ यू हैव अ टोटल ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, तो उनमें से 2-2 के कॉम्बिनेशंस वुड बी nc2. और इसकी वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट. इन जनरल एक्चुअली मैं वो भी लिख देता हूं, एनसीआर होता है. एनसीआर क्या होता है, सिंपली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल. तो वहीं से आपका बेसिकली इस प्रॉब्लम में आपका n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कितने आपका r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, 10c2, राइट. सो 10c2 वुड बी द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. और चाहो तो तुम इसका शॉर्टकट याद रख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके ना हमेशा क्या आता है, n into n minus 1 divided by 2. You will learn this, right? This comes in very handy, ठीक है, because nc2 is a very common thing. तो सिंपली अब ये वाला पार्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बस कितने कॉम्बिनेशन तुम्हारे बनने हैं. तुम पीएनसी नहीं समझते, फैक्टोरियल नहीं समझते, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये तो समझ सकते हो. तो बस इतना ही रख लो. जब भी तुम्हें इन चीजों में से 2-2 के कितने ग्रुप्स या कितने पेयर्स बेसिकली फॉर्म होने, अगर तुम्हें सिर्फ ये फिगर आउट करना है तो सिंपली n into n minus 1/2 कर दोगे, तुम्हें सारे पॉसिबल पेयर्स मिल जाएंगे. तो सीधा सा फंडा है कि तुम्हारे पास 10 फ्लाइट्स थी, कितने 2-2 के पेयर आएंगे, दैट वुड बी व्हाट, 10 into 9/2, ये वही वैल्यू है आपकी 10c2 की. और नाउ एवरी पॉसिबल सच पेयर कितना आएगा, ये 10 into 9/2 दैट इज 45. एवरी पॉसिबल पेयर विल हैव अ टोटल ऑफ 4 फ्लाइट्स. मॉर्निंग में ए से बी से, और इवनिंग में भी ए से बी से. तो हमेशा हर पेयर ऑफ सिटीज के बीच में भी आपको 4 फ्लाइट्स चलानी पड़ेंगी टू गेट दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल
होल्डिंग ट्रू, राइट? सो 45 into 4 ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर, एंड दैट वुड बी 180, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। तो थ्रू द फर्स्ट प्रॉब्लम हमने वो दो अपना पार्ट डिस्कस कर लिए कि अगर आपको पेयर फिगर आउट करना है तो NC2 से फिगर आउट कर सकते हैं, एंड वाई वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग 4 टू द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमेशा आपको 4 फ्लाइट्स ऑपरेट करनी पड़ेंगी, वो तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल आपका था ही। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम। Suppose 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. A hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way. वही A से B से सारा, both in the morning as well as in the evening, right? So वही 4 फ्लाइट्स की बात कर रहा है। The only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of those hubs. So direct flights आपकी हमेशा कहां से चलेगी? जो हब में है, right? और हब में आपकी कितनी है? 3 of the 10 cities. तो ऐसा कुछ समझ लो कि देयर आर 3 cities, ये हब में है आपका, और बची हुई तुम्हारी कितनी है? 7 cities, बिकॉज टोटल ऑफ 10 cities have to be there. तो हब में आपकी 3 cities है, ये तीनों सिटीज से ही आपकी डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी जहां पे भी जानी है, ठीक है? Then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle of the airline to serve all the 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip is. तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा। अगेन आपका पास क्या कर रहा है ना, वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन सेट कर रहा है कि पहले तो सारे 10 में जितने भी पॉसिबल पेयर है उनमें आपकी डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी, वो निकाल के 10C2 into 4 कर दिया, 180 आ गया। अब आपका रिस्ट्रिक्शन ये है कि 10 सिटीज में नॉट एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ 2 सिटीज इज कनेक्टेड, सिर्फ आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स कहां से चलती हैं? ये 3 सिटीज से चलती हैं जो कि हब का पार्ट है, बाकी लेकिन आपको कनेक्ट सबको करना है, तो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स का लॉजिक भी यहां पे हो सकता है, राइट? नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट फ्लाइट का नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट ही है, बट कनेक्शन आपका कहां से स्टार्ट होगा? इन्हीं से होगा। डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ आपकी ABC से, ABC क्या बोल रहा हूं बेसिकली, इस हब में मान लो 3 अगर सिटीज है ABC। नाउ अब आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस या फ्लाइट्स अगर काउंट करना है तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशंस फिगर आउट कर लो। ये सारी सिटीज आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है? हर मतलब यहां से आप कहीं पे भी जा सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग अगर नोटिस करो, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका ये जो 3 सिटीज है, ये 3 सिटीज आपस में पहले तो कनेक्टेड रहेंगे, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये 3 में भी आपस में कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। आपस में कॉम्बिनेशन बनने का मतलब समझ रहे हो? जैसे 3 चीज है तो ये इससे कनेक्टेड होनी चाहिए, ये वाली इससे कनेक्टेड होनी चाहिए, और ये वाली इससे भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस। अगर हब में ही आपस में हम फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे कितना फ्लाइट्स आ जाएगा? 3 फ्लाइट्स। अभी सिर्फ हम कॉम्बिनेशन काउंट कर रहे हैं, इंटू 4 कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ जाएगा, ठीक है? मॉर्निंग इवनिंग टू एंड फ्रो। अब ये इन 3 में 2-2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3। बाय द वे वो 3C2 से ही 3 ही आएगा। देन ये जो 7 सिटीज है ये आपस में डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड तो नहीं है, तो उसमें 7C2 करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये 7 सिटीज किससे कनेक्टेड होंगे? थ्रू दीज 3 सिटीज। तो सिंपल सा फंडा है, यहां पे 3 सिटीज है, लेट्स कॉल देम ABC। तो A से भी 7 आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे ये 7 सिटीज के। जो B होगा हब का दूसरा, वहां से भी आपके 7 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और जो हब का तीसरा सिटी होगा लेट्स से C, उससे भी आपके 7 कॉम्बिनेशंस ही बनेंगे। तो 7 + 7 + 7 21 आपके कॉम्बिनेशंस कैसे बनने वाले हैं? यहां की एक सिटी और यहां की एक सिटी को कनेक्ट करके, राइट? इसका मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कितने आ गए? 24। एंड नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स, तो ये जो 24 पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन आए हैं, हर एक कॉम्बिनेशन में आपको कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली 4। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी 24 into 4 एंड दैट वुड बी 96। आया क्लियर है सबको समझ में? तो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? 96। तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके बने हैं ना, वो आपके वो पेयर्स में ही आपके पास चेंजेस करा रहा है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, ठीक? So that second answer is now 96. Let's go to the third problem. Now it looks very lengthy, but we'll have to understand what is actually given in this. Let's change color for this. So third problem क्या बोलता है? Suppose the 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3, G4. So there are 4 groups, right? G1, G2, G3 and G4.
having 3 3 2 2 cities respectively. तो इसमें भी 3 cities है, इसमें भी 3 cities है, इसमें 2 cities है और इसमें भी 2 cities है. 3 3 2 2 cities respectively, and that G1 consists of cities named A, B and C. तो ये भी बोल रहा है कि लेट्स से G1 में जो 3 cities है वो क्या है, A, B and C. Fair enough. Next, further, suppose that direct flights are allowed only between two cities satisfying one of the following. Again वही बात है, वो डायरेक्ट फ्लाइट्स कहां पे ऑपरेट करेंगी, किन कॉम्बिनेशंस में ऑपरेट करेंगी, उसके लिए उसने 4 कंडीशन दिए. इन चारों कंडीशन को अगर कोई भी मीट, मतलब ये चारों कंडीशन में कुछ भी अगर मीट होता है तो उन पेयर ऑफ सिटीज के बीच में आपका डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होगा. चारों साइमल्टेनियसली मीट होना जरूरी नहीं है, कोई भी अगर मीट हो रहा है तो आपका वो चलेगा. जैसे बोथ सिटीज इन G1, तो डायरेक्ट फ्लाइट आपकी हमेशा कहां चलेगी, G1 के दोनों सिटीज में. G1 अगर 2 सिटीज आपकी G1 में ही है, G1 का मतलब A, B, C, ये तीनों के बीच में आपस में हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी, राइट. तो इन तीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट क्या होगा, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वही 3 3 2 जस्ट आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था. डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो. इन तीन के बीच में अगर डायरेक्ट फ्लाइट चलाना है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, AB बनेगा, AC बनेगा और BC बनेगा. तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कितने आपके पेयर आएंगे, 3 पेयर आएंगे. प्लस नेक्स्ट कंडीशन, बिटवीन A एंड एनी सिटी इन G2, तो A से G2 के हर सिटी को कनेक्ट करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, A का पहली सिटी के साथ, A का इसके दूसरी सिटी के साथ, A का इसके तीसरी सिटी के साथ. तो 3 ही तो कॉम्बिनेशन आएंगे, बिकॉज A से कनेक्ट कर रहे हो, यहां पे 3 सिटीज हैं, A से फर्स्ट सिटी, A से सेकंड सिटी, A से थर्ड सिटी, तो 3 कॉम्बिनेशन वो भी आएंगे. देन बिटवीन B एंड एनी सिटी इन G3, तो B से G3 के दोनों सिटीज में 2 पेयर बनेंगे, राइट. एंड देन फाइनली बिटवीन C एंड एनी सिटी इन G4, तो C से G4 के दोनों सिटीज को कनेक्ट करना है, तो उसके भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो दिस एंटायर थिंग विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 सिटीज जिनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करनी है. और ये कितना आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, एंड एवरी पॉसिबल पेयर विल हैव अ टोटल ऑफ व्हाट, 4 फ्लाइट्स. तो 10 × 4 से, राइट, ये 10 आ गया, और 10 × 4 से क्या बन जाएगा तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव टू बी ऑपरेटेड, दैट वुड बी 40. आया समझ में, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बेसिक पीएनसी है एक्चुअली में. मेन आपका वो कॉम्बिनेशंस एक्चुअली में बस आपसे क्या करा रहा है, चेंज करा रहा है, राइट. सो थर्ड प्रॉब्लम का आंसर क्या बन गया हमारा, 40. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, सपोज द 10 सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप. तो नोटिस करोगे ये यहां से लेके ये पूरा पार्ट, राइट, दिस एंटायर थिंग इज कॉमन. ये जो इनिशियल कंडीशन है कि डायरेक्ट फ्लाइट किन पेयर ऑफ सिटीज में ऑपरेट करेगी, वो तो आपका पूरा कांस्टेंट ही है थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम के लिए, तो इसको बचा के रखते हैं. लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट. नाउ व्हाट आर द चेंजेस को देखते हैं. हाउएवर, सो दैट इज अ बट, हाउएवर ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टीज एट ए में क्या दिक्कत आई, it was later decided that only flights that would operate at A would be those to and from B. तो A से जो भी फ्लाइट सिर्फ चलेगी वो सिर्फ AB की फ्लाइट चलेगी. इसका मतलब जो पहले A से G2 आपका कनेक्शन था ना, A से G2 की तीनों फ्लाइट्स, वो 3 आपके पेयर, वो सब हट जाएंगे, बिकॉज A से जो भी फ्लाइट चलेगी सिर्फ आपका B पे चलेगी. A से C भी पॉसिबल ऑब्वियसली अब नहीं हुआ, पहले था AB, AC, BC सब पॉसिबल था ना, बट अब आपका सिर्फ AB ही आपस में कंबाइन हो सकता है, right, would be those to and from B. Cities in G2 would have to be assigned to G3 और G4. तो इसने ये भी बोल दिया कि G2 की ये जो सिटीज है, क्योंकि फिर तो A वाली फ्लाइट्स आपके आ ही नहीं रही हैं, तो G2 को किस में असाइन करना पड़ेगा तुम्हें, G3 एंड G4 में. तो अब आपको ये तो नहीं दिया है कि G2 के जो 3 आपके सिटीज हैं इनमें कितने हम G3 में डालेंगे और कितने G4 में डालेंगे, तो परहैप्स वो मैटर भी नहीं करता, कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. What would be the maximum reduction in the number of direct flights as compared to the situation before the operational difficulties? Before the operational difficulty तो यही प्रॉब्लम हो गया. तो पहले आप कितने चला रहे थे, 40 फ्लाइट्स. मैक्सिमम रिडक्शन आपको करना है, राइट. तो अब देखते हैं इसमें आपकी कितनी फ्लाइट्स आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी. नाउ हाउ डू वी डू दिस. अब लेट्स से इसमें क्या आपकी फ्लाइट्स होंगी, जैसे इन तीनों के बीच में G1 में कितनी फ्लाइट्स चलेंगी, G1 वाले ग्रुप में. तो अब आपका इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले तो 3 चल रहा था, बट अब क्या चल रहा होगा, सिर्फ AB का एक कॉम्बिनेशन और सिर्फ तुम्हारा एक BC का कॉम्बिनेशन. तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. इसके बाद ये तो यहां से खत्म हो गया. अब बस बात ये है कि ये जो आपके 3 सिटीज थे वो G3 एंड G4 में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए.
अगर तुम करना चाहो तो तुम उस 3 को रैंडमली चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि उससे अगर फर्क पड़ रहा होता तो दिया होता, नहीं फर्क पड़ रहा है इसलिए नहीं दिया है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसे हो सकता है अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग आंसर्स आए, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो अब 3 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज मैंने बोला 3 में से यहाँ पे x सिटीज आई तो 2 + x कर दिया, और 3 में से x अगर इधर आया तो 3 - x तुम्हारा इसमें जुड़ेगा। ये बस दोनों में मिला के 3 डिस्ट्रीब्यूट होना है। मान लो 3 में से यहां x आया तो यहां 3 - x आएगा। वेरिएबल यूज कर सकते हैं इफ इन केस यू डोंट वांट टू अज्यूम एनी नंबर्स। तो अब आपके पास कितनी और कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो इसने क्या बोला था, B से आपके G3 कनेक्टेड होते हैं ना, तो B के सिटी से 2 + x कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर ये नंबर होता 5 होता तो आप 5 बोलते, 2 + x है तो 2 + x कॉम्बिनेशन बनेंगे। एंड सिमिलरली C से आप इनको कनेक्ट करने वाले हो तो ये कितना आ जाएगा 5 - x। तो आप नोटिस करोगे दीज आर नाउ माई टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिटीज जिनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। और इसीलिए मैंने बोला मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसलिए अगर आप कुछ भी नंबर दिए होते तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला था। And now the total number of pairs would be 2 + 2 + 5, that is 9, and 9 into 4 करेंगे number of flights के लिए, 9 into 4 that would be 36। 36 फ्लाइट्स आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी। सो वही पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स। सो 40 फ्लाइट्स पहले आप ऑपरेट कर रहे थे विदाउट एनी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, एंड नाउ विद ऑपरेशनल डिफिकल्टीज एट दिस ए यू विल हैव टू ऑपरेट 36 मिनिमम फ्लाइट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 - 36, एंड द आंसर वुड बी राइट। सो इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन फिगरिंग आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस, क्योंकि होना चाहिए डेफिनेटली, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, यू वुड बी डेफिनेटली सेलिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can just put that in the comments. Thank you.